السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے پچھلے 3 ہفتوں میں شہادتین کا پہلی شہادت لا الہ الا اللہ کو مکمل کیا۔ اس کی تفسیر کو ہم نے تفصیل سے پڑھا۔ آج شہادتین کا جو دوسری شہادت ہے اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے توجہ سنیے۔ آئیے آج کے جو نقطے ہیں ان نقطوں کو جو ہے تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا نقطہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، ہے نا؟ ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، میرا ان پر ایمان ہے۔ اپنے آپ سوال کر لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ہم کتنا جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نقطے میں جو پہلا نقطہ آ رہا ہے وہ ہے آپ کا نسب۔ آپ کا نسب کیا ہے؟ دیکھیے کیسے شروع ہوتا ہے۔ آپ کا نام محمد ہے، بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، اور ہاشم جو ہے قریش کے قبیلے میں سے ہے، اور قریش قبیلہ بنو عدنان سے ہے، اور بنو عدنان سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے، اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کہاں تک پہنچتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ یہ ہے آپ کا نسب۔ اس نقطے کا اور ایک دوسرا نقطہ یہ ہے کنیت۔ آپ کی کنیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، اس لحاظ سے آپ کی کنیت کیا ہونا چاہیے؟ ابو القاسم۔ ابو القاسم آپ کی کنیت ہے۔ اس کے بعد تیسرا نقطہ آپ کا نام۔ میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، 10 نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے معنی کے ساتھ۔ آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، آپ پر ایمان لانے والے، کم سے کم آپ کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کے معنی کیا ہے؟ مخلوقات میں جن کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی انہیں کہتے ہیں محمد۔ یہ نام آپ سے پہلے کسی شخص کا نام نہیں تھا، آپ کو پہلا نام دیا گیا۔ یہ نام آپ سے یہ نام شروع ہوا۔ یہ نام انمول ہے، خاص ہے، اور خاص شخص کے لیے ہے۔ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ دوسرا نام احمد۔ احمد کے معنی کیا بنتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے کو احمد کہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کون بیان کر سکتے ہیں؟ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں۔ تیسرا نام الماہی۔ الماہی کے معنی وہ ہے کہ کفر کو مٹانے والے، آپ کا نام ہے صحیح بخاری کے حوالے سے۔ چوتھا نام الحاشر، مطلب کیا ہے؟ میدان محشر میں لوگوں کو جمع کرنے والے۔ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے آپ اٹھیں گے، آپ کے بعد سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا میدان محشر میں۔ اس کے معنی یہ بنتے ہیں الحاشر کے۔ پانچواں نام آپ کا کیا ہے؟ العاقب۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ کی بعد اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یعنی آپ آخری نبی ہے۔ یہ 5 نام ہے۔ اس کے بعد اور 5 نام مختلف حدیثوں کے حوالے سے۔ چھٹا نام یہ ہے المخافہ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کے حوالے سے ہے۔ مخافہ کے معنی بنتے ہیں وہ شخص جو پہلے رسولوں کی پیروی کرنے والے۔ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ المخافہ کے معنی۔ 7واں نام آپ کا وہ ہے النبی التوبہ، مطلب توبہ کرنے والے نبی۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ذریعے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہے۔ کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، النبی التوبہ۔ پھر بعد میں اگلا نام 9واں نام وہ کیا ہے؟ النبی الرحمہ، یعنی رحم کرنے والے نبی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ساری مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یہ آپ کا نام ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اس کے حوالے سے اوپر کا بھی پہلے جو نام ہے نا النبی توبہ، وہ بھی جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اور 9واں نام وہ ہے النبی الملحمہ، یعنی اس کے معنی یہ بنتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے والے۔ یہ ہے النبی الملحمہ۔ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی ہے۔ اور 10واں نام وہ ہے النبی المصطفیٰ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو چن لیا ہے اپنے نبوت کے لیے، یعنی رسالت کے لیے چنا ہے نا۔ مصطفیٰ مطلب کیا؟ چننا۔ یہ 10 نام انشاءاللہ آپ لوگ یاد کر لیجیے۔ اس کے بعد اگلا نقطہ یہ ہے آپ کی پیدائش اور تاریخ وفات۔ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہاتھی والے سال مکہ المکرمہ میں۔ اکثر لوگ سے غلط فہمی ہوئی ہے کہ 12 ربیع الاول بولتے ہیں لوگ، لیکن مورخین کے جو ان کے تحقیقات کے مطابق دیکھیں تو 9 ربیع الاول ہے آپ کی پیدائش۔ رحیق المختوم کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں آپ۔ اس کے بعد آپ کی وفات 12 ربیع الاول 11 ہجری مدینہ المنورہ میں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں پیدا کب ہوئے، آپ فوت کب ہوئے۔
फौत वाले दिन अक्सर लोग क्या करते हैं, मिलादुन्नबी मनाते हैं, जबकि मिलादुन्नबी साबित नहीं है। गम वाले दिन क्या करते हैं, खुशी मनाते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर उसके बाद अगला नुक्ता यह है, आपके घर वाले कौन कौन है? वालिदैन, आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, वालिदा का नाम आमिना बिन्त वहाब। बीवियाँ आपके 11 बीवियाँ, बास के नाम, सारा नाम नहीं बता रहा हूँ, बास के नाम कौन है इसके अंदर? सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सईदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सईदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये चंद नाम आपके सामने रखा मैं। आपकी औलाद 7 बच्चे थे, उसमें जो है ना 3 बेटे 4 बेटियां। बड़े बच्चे का नाम कासिम, आपके बाद ज़ैनब, आपके बाद रुक़ैया, आपके बाद फातिमा, आपके बाद उम्मे कुलसुम, आपके बाद अब्दुल्ला, आपके बाद इब्राहिम। 3 बेटे 4 बेटियां। इन 7 औलाद में से 6 के 6 आपकी हयात ज़िंदगी में फौत हो गए। सिर्फ एक है बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपकी वफात के 6 महीने के बाद ये फौत हो गई। रिश्तेदार आपके कोई बताते हैं 11 चाचा हैं, कोई बताते हैं 10, बहरहाल 11 या 10 हो, उनमें से 4 चाचाएं तक दीन इस्लाम पहुंच चुका था। दीन की दावत 4 चाचाओं के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन उनमें से 2 चाचाएं इस्लाम को कबूल किया, 2 कुफर पर बाकी रहे, उसी पर फौत हो गए। वो कौन थे जानते हैं आप? 2 चाचा जो इस्लाम कबूल करे, अब्बास रज़ियल्लाहु ताला, हमजा रज़ियल्लाहु ताला। दोनों में देखिए, दोनों कंपेयर करें तो एक से बढ़कर एक है। फजीलत में देखें तो किसकी फजीलत ज्यादा है? हमजा रज़ियल्लाहु ताला शहीद हो चुके हैं जंग उहद में। अब ये कुफर पर रहे, कुफर में फौत हुए, जबकि उन तक दावत पहुंची थी। वो दोनों थे, वो कौन है जानते हैं आप? अबू लहब, अबू तालिब। ये भी देखिए एक से बढ़कर एक है, अबू लहब, अबू तालिब। कौन ज्यादा कुफर में है? अबू लहब। और आपकी फुप्पियाँ 6 थी, उसमें से एक फुप्पू जो है सिर्फ इस्लाम कबूल किए थे। वो कौन थे? सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला। ये थे आपके रिश्तेदार। फिर उसके बाद आज का इस मौजू का दूसरा नुक्ता वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक क्या है, यानी कैसा था। इसमें से पहला नुक्ता यह है चेहरा मुबारक। आपका चेहरा मुबारक कैसा था? चेहरा आपका गोरा, पुरकशिश, गोल, रोशन रंग, सुर्खी आमेज, चौधरी के चांद जैसा। ये पूरी हदीस के हवाले से आ रही है आपके सामने बातें। दूसरा नुक्ता चेहरे के मुतालिकात, रुखसार हल्के, पेशानी कुशादा, भवें बारीक और कामिल, आंखें बड़ी, दाढ़ी घनी, और आपकी दाढ़ी में 20 सफ़ेद बाल थे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मुहद्दिसीन ने आपके बारे में कहाँ तक जो ना इल्म को महफूज किया है, सुभान अल्लाह। इसका तीसरा नुक्ता आपका सर, गर्दन और बाल। सर आपका बड़ा था, गर्दन लंबी, बाल लंबे, दरमियान से मांग, इसके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और 5वां नुक्ता खद खामत और जसामत। खद खूबसूरत, खामत मोतदिल, जसामत मोतदिल, बदन भरा हुआ, कांधे आपके जो है चौड़े, और कदम जो है ना कुशादा। ये थे आपके हुलिया के मुतालिक। और ये तीसरा नुक्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत और रिसालत कैसे मिली, कब मिली, कौन सी आयत से मिली? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अल्लाह सुब्हानहू तआला के इस फरमान से मिली, वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें क्या फरमाता है? पढ़िए अपने रब के नाम से, वो जिसने पैदा किया। इस आयत से आपको जो ना नबूवत मिली। गार हिरा में ये सबसे पहली वही थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो दीन इस्लाम का सबसे पहला और बुनियादी पैगाम था। पहली आयत, पहली वही। दीन की बुनियाद इल्म है और इल्म हासिल करने से आता है। मुसलमान कभी जाहिल नहीं हो सकता, और अगर से मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, आपसे मोहब्बत करने का दावा रखता है, तो कभी जाहिल नहीं हो सकता, क्योंकि पहली वही क्या थी? इक़रा, पढ़ो बोल के थी। जब भी इस उम्मत ने इल्म का एहतमाम किया, खास तौर पर दीन के इल्म का, तो ये उम्मत सबसे बुलंद मर्तबे पर फाइज हुई। देखिए इल्म की वजह से मर्तबा इस उम्मत का बढ़ा है। जब इस उम्मत ने इल्म को छोड़ दिया, फिर क्या हुआ? रुसवा, जिल्लत, खस्ता हालत में हो गई। इल्म का एहतमाम खास तौर पर करना चाहिए। खास तौर पर कौन सा इल्म? दीन का इल्म के बारे में बात हो रही है। दूसरा सवाल इस नुक्ते का, आपको रिसालत किस आयत से मिली? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला के इस फरमान से आपको जो रिसालत मिली।
या अय्युहल मुद्दसिर कुम फअंजिर, ऐ लपेटने वाले कपड़े में, और कुम फअंजिर यानी उठो फिर डराएं। इसका मतलब क्या है? शिर्क से लोगों को आगाह करें। इस आयत से आपको रिसालत मिली। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि नबूवत कैसे मिली और रिसालत कैसे मिली, क्या फ़र्क है नबूवत में और रिसालत में, मतलब रसूल में। अगला नुक्ता आ रहा है वो क्या है? नबी और रसूल में क्या फ़र्क है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस फरमान से हमको ये पता चलता है कि नबी और रसूल में फ़र्क है। बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में क्या फरमाता है कि वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रसूलिन वला नबिय्यिन, आपसे पहले नहीं भेजा हमने किसको? रसूल को और नबी को, किसी कोई रसूल को कोई नबी को। मतलब क्या है? जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत को बयान फरमा, मतलब क्या है? नबी और रसूल में दोनों फ़र्क है। तभी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोनों को एक साथ बयान किया इस आयत में। इस आयत से हमें क्या पता चलता है? देखिए, इसमें रसूल का भी जिक्र आया है, नबी का भी जिक्र आया है। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन वला नबिय्यिन। तो रसूल के लफ्ज़ी माने क्या बनते हैं कि पैगाम पहुँचाने वाले को रसूल बोलते हैं, लफ्ज़ी माने। शरई माने वो होते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पैगाम को पहुँचाने वाला, ये रसूल है। नबी क्या है? खबर देने वाले। अब देखिए क्या फरमाते हैं शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, नबी और रसूल में क्या फ़र्क है। बहुत आसान है याद करना। आप फरमाते हैं नबी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिन की तरफ भेजा है, रसूल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुशरिकीन की तरफ भेजा है। समझ में आई बात? नबी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिन की तरफ भेजा, मुसलमानों की तरफ भेजा है, रसूल को मुशरिकीन की तरफ भेजा है। इससे ये मालूम होता है रसूल क्या करता है? तबलीग करता है, लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देता है ना। ये फ़र्क है। यानी रसूल की तरफ वही भी की जाती है और तबलीग की हुक्म भी दिया जाता है, आप तबलीग करें। हर रसूल नबी होता है लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता, ये भी नुक्ता याद रखने आप। फर्क, हर रसूल नबी है लेकिन हर नबी रसूल नहीं है। इसके बाद अगला नुक्ता आज के इस मौजू का वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का माना क्या है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू क्या फरमाता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अल्लाह सुब्हानहू तआला की। तो ये जुमला इस्मिया है, जो ना मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या है, जुमला इस्मिया है। यानी इसके अंदर अगर इस जुमले को तकसीम करें, मोहम्मद पहले आया, रसूल बाद में आया, उसके बाद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूल अल्लाह, तीन इसके अंदर क्या है? लफ्ज़ है। तो मोहम्मद जो है ना मुब्तदा है, रसूल खबर है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो इसमें करीम है ये मुदाफ इलैहि है। यानी खबर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू तआला के रसूल है, और इस खबर की तस्दीक करना फ़र्ज है। फ़र्ज है यानी मतलब क्या है? वाजिब है, क्योंकि खबर देने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानहू तआला। कुरान किसका फरमान है? अल्लाह सुब्हानहू तआला का। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, खबर देने वाला अल्लाह सुब्हानहू तआला है। खबर की तस्दीक करना हर मुसलमान पर, हर ईमान वाले पर फ़र्ज है, वाजिब है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की खबर की तकज़ीब करना कुफ्र है। अगर कोई इनकार करता है, मैं जुटलाता हूँ नौज़ बिल्लाह, तो वो क्या है? वो कुफ्र है। वो क्या कर रहा है? कुफ्र का इर्तिकाब कर रहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के फरमान को जुटलाना कुफ्र है। इस आयत से हमें ये पता चला, मोहम्मद रसूलुल्लाह के इस आयत से क्या पता चला? हमें ये पैगाम मिलता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू तआला के रसूल है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के माने हैं। आइए दूसरा जो नुक्ता इसका वो क्या है? अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसका माना क्या है? देखिए अशहदु ये क्या है? ये जो है ना इस्लाम का पहले रुकन का शहादतैन का क्या है? दूसरी शहादत है। इस्लाम का पहला रुकन क्या है? शहादतैन है, दो गवाहियां देना है। पहली गवाही हमने पढ़ चुका है, हमने पढ़ ली है पहली गवाही को। दूसरी गवाही जो है ना, दूसरी शहादत जो है ना, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है? अशहदु यानी इसके माने क्या बनते हैं? अशहदु क्या है? जुमला फेलिया है। यानी अशहदु का मतलब क्या है? मैं गवाही देता हूँ। क्या गवाही देता हूँ? गवाही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू तआला के बंदे हैं और रसूल हैं। और गवाही देने के लिए दो चीज़ें होना ज़रूरी है। हमने पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह में, गवाही देने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है। कौन से हैं? एक तो इल्म होना चाहिए, दूसरा यकीन। इल्म और यकीन की बुनियाद पर गवाही देना है। यानी जो भी गवाही देता है वो क्या करता है? मैं इल्म और यकीन की बुनियाद पर गवाही दे रहा हूँ, ये कहता है। फिर बाद में अशहदु की बात क्या है? अन्ना बोल क्या है इसका? अन्ना का माना क्या है? देखिए ये ताकीद के लिए है।
इस गवाही की मजीद ताकीद, पहले तो गवाही दे रहे, फिर बाद में गवाही की मजीद ताकीद के लिए अन्ना बोल के आया इसके अंदर। कोई शक की गुंजाइश नहीं है, और शक करना कुफ्र है। अगर कोई शख्स ये शक करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और रसूल है, इस पे शक है, तो इस मतलब क्या है? कुफ्र का इर्तिकाब कर रहा है, दायरे इस्लाम से खारिज है। तो गवाही है और उसके साथ साथ क्या ताकीद भी है इसके अंदर। कहाँ तक पहुँचे हम? अशहदु अन्ना, यहाँ तक पहुँचे हैं। फिर बाद में मोहम्मदन, ये क्या है? आपका नाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। मोहम्मद के माने क्या है? अभी आपके सामने आया है। मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा जिसकी तारीफ की गई उनको कहते हैं मोहम्मद, ये आपका नाम है। फिर अब्दुहु, इसका माने जानना है। अब्दुहु का माने, अब्दुहु के माने इसमें देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला के बंदगी करने वाले हैं, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला के बंदे हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला के बंदगी करने वाले हैं। सबसे अफजल बंदे हैं आप, कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे बंदों में सबसे अफजल बंदे कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अब्द, इसको अच्छी तरह समझिए आप, अब्द कभी माबूद नहीं हो सकता। अब्द यानी बंदगी करने वाला माबूद हो सकता कभी? माबूद के माने क्या है? जिसकी बात की जाए, जो बंदा है बंदगी करता है, किसकी? इलाह की, अल्लाह सुब्हानहू तआला की बंदगी करता है। जो बंदा है उसको कभी माबूद बनाना नहीं है। अब्द कभी माबूद नहीं हो सकता। तो गुलू की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। अब्द को माबूद बनाना ये गुलू है, तो गुलू की कोई गुंजाइश नहीं है इसके अंदर। तो जिसने भी बंदों में से, यानी बंदों में से जिसने भी किसी बंदे को माबूद का दर्जा दे दिया तो वो दायरे इस्लाम से खारिज है। समझ गए ना? बंदों में से किसी एक बंदे को वो माबूद बना लिए तो मतलब क्या है? बनाने वाला दायरे इस्लाम से खारिज है। तो गुलू करना कुफ्र यहाँ पे। आखिर में वह रसूलहू का मान है, मतलब क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगाम को पहुंचाने वाले हैं कौन? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल के माने इससे पहले आपके सामने आया है। और रसूल में से सबसे अफजल रसूल कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी रसूल, आखिरी नबी। और रसूल कभी झूठा नहीं हो सकता। रसूल किसकी तरफ से है? अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। अल्लाह सुब्हानहू तआला चुना है। अब सवाल यह है, कोई भी शख्स ये दावा नहीं कर सकता मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, इसलिए कि मेरे पास ऐसा इल्म है, मेरे पास ऐसी सलाहियत है, मेरे पास ऐसी खूबियाँ हैं, इसकी बुनियाद पर मैं नबी का दावा करता हूँ, मैं रसूल का दावा करता हूँ। नहीं, बिल्कुल गलत है। ऐसा करने वाला दायरे इस्लाम से खारिज है। जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ही नबी को, रसूल को चुनता है अपनी तरफ से। कोई भी शख्स अपने आप नहीं बन सकता। इसके लिए दलील मिलती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का फरमान है, अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नासी इन्नल्लाह बसीर। अल्लाह सुब्हानहू तआला मलाइका में, यानी मतलब क्या? मलाइका में से मतलब क्या है? फरिश्तों में से और उसके बंदों में से क्या करता है? लोगों में से रसूलों को चुनता है अल्लाह सुब्हानहू तआला। चुनने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानहू तआला। कोई शख्स अपने आप नहीं बन सकता। इन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला खूब सुनने वाला है, खूब देखने वाला है। तो रसूल कभी झूठा नहीं हो सकता। रसूल को कभी झुटलाना नहीं है, रसूल की बात को झुटलाना नहीं है। तो मतलब क्या है? तकज़ीब की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। तकज़ीब करना कुफ्र है। समझ गए आप? इसके माने क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु, मतलब क्या है? अब्द कभी माबूद नहीं हो सकता। इबादत करने की किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं यहाँ पे। इबादत नहीं करना आपकी, तो आप भी अल्लाह के बंदे हैं। और बंदे के साथ साथ आप कौन है? अल्लाह के रसूल है। रसूल को झुटलाना नहीं है। रसूल को झुटलाने वाला दायरे इस्लाम से खारिज। ये थे आज के ये सारे नुक्ते। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते इसी हिस्से का, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा हिस्सा इंशाअल्लाह आपके सामने पेश किया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।